नंबर 2 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी करनाल में SW-80 गरुड़ का एक नया फ्लाइंग सिमुलेटर का उद्घाटन ब्रिगेडियर SK वेद, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय अंबाला द्वारा किया गया। यह हरियाणा के 6 जिलों के विभिन्न कॉलेजों और स्कूल के एनसीसी एयर विंग कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें परीक्षकों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा व इससे उड़ान परिदृश्यों का अनुकरण किया जा सकेगा। इस अवसर पर ग्रुप कैप्टन DJ नायर, कमांडिंग ऑफिसर नंबर 2 हरियाणा एयर स्क्वाड्रन एनसीसी करनाल ने कैडेट को बधाई देते हुए कहा कि यह सिमुलेटर कैडेट्स को बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा और कैडेट्स वास्तविक विमान उड़ाने से पहले आपातस्थित मौसम की स्थिति इत्यादि में विमान कैसे प्रतिक्रिया करता है इसका अनुभव प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने ब्रिगेडियर SK वेद के इस वर्ष अक्टूबर के महीने में बेंगलोर में होने वाले अखिल भारतीय वायुसेना सैनिक शिविर में भाग लेने वाले कैडेट्स को दिए जा रहे एयरो मॉडलिंग परीक्षण की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रुप कमांडर ने एयरो मॉडलिंग टीम के कैडेट्स निधि, चेतना, सौरभ, गोविंद, ओमकार, विजय बाजवा और भव्य द्वारा बनाए गए कंट्रोल लाइन, स्टैटिक और रेडियो कंट्रोल एयरो मॉडल्स को देखा और कैडेट्स को की खुले दिल से प्रशंसा करते हुए कैडेट्स को लगातार मेहनत करने की सीख दी। इस अवसर पर NO फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुरेश कुमार दुग्गल, डॉक्टर पवन शर्मा, सेकेंड ऑफिसर आनंद मिश्रा, JW ODK सिंह, अमरजीत, कॉर्पोरल संजीव, कॉर्पोरल N शर्मा, हितेश दान सिंह, AMI जगदीश कपिल आदि यूनिट के स्टाफ सदस्य खुशी जाहिर करते हुए उपस्थित रहे। So the cadet generally sits on the right, but in a simulator we can put him on the left also. He gets an experience. Captain always flies on the left. So in the aircraft, since it's only air experience for them, I sit on the left as the captain, they sit on the right as the first. But the system is duplicated throughout. It can be done from any side. It can be flown from the left or the right. Whatever is done here is duplicated there. So basic controls of from both. So they say for how many hours? And the displays are also there. The speed is located there also. Speed is that where we can do that and so the flying actually takes place. The scenery accordingly changes as per the movements that we do. We have come to around 200 feet and we have released the stick. Automatically the nose goes to next to the aircraft. We are flying at around 200 knots flying from the aircraft. So the scenery is always there. So we can put on back to the bed. Everything is duplicated as it is. So we can come around the runway. Scenery is not exactly the same as this place, but we have seen the cottage. So we can see Yamuna river and everything. So as would be in a normal aircraft, we get this. And if somebody doesn't fly properly, so we can hit the ground and as of now we have not engaged crash. I'll show you a crash. We have disabled crash. For the fact that it will bounce back. Okay. So we have set it there because if the crash takes place, the system resets. We can again start from scratch and next time. Otherwise we can fly and go back and I can suitably find a land where I can land and the place to land and then accordingly I can maneuver. I've got an open space there, so I'm going for that. Motor systems. So they put a 1.1 kVA normal inverters. So it's available on inverter. You can fly up to 1 hour on inverter also. They are preparing for this event in July and उन्होंने पिछले कुछ महीने में 2 मॉडल्स बनाए. This was their first model and this is their second model and they are improving on this and as well they are learning for flying also. Now this cadet 2 hours and now he is independent and he is doing all the maneuvers. So this is his state and we are preparing for All India Vayu Sainik Camp. Now after this we will work on the maneuvers quality so that they can perform and they can bring something. Very good. There are points for the making also. So you can see a classic improvement in the structure as such. They're getting ready for the next model. Good. And what are these young girls doing? So they are Last time also you were there when I came? static They're the model. static model. इन्होंने 170 घंटे टोटल काम किया सर. इन 170 आवर्स 80 आवर्स इन्होंने फर्स्ट मॉडल पर लगाए थे और वो MiG-29 का मॉडल बनाया था. उसके बाद नाउ दे आर शिफ्टेड टू
Jaguar model, because they are preparing for Jaguar and AIBSC, ऑल इंडिया वायुसैनिक है। और अभी इस सेकेंड मॉडल पे इन्होंने 60 घंटे लगाए हैं, और ये तीसरा मॉडल है जिसपे कि 30 घंटे लगाए हैं, 10 घंटे रिमेनिंग है, 40 में इसको पूरा करेंगे। एंड दे आर कमिंग टू द लेवल जिसमें कि इन्होंने 24 घंटे में ये अपना नेक्स्ट मॉडल बना लिया, जो कि AIBSC का जो मार्क है, रिक्वायर्ड मार्क है। एंड दे आर डूइंग वेल सर, द क्वालिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू। Very nice. And we have sir radio control flyers and 3 hours initially he has flown on simulator. वहाँ पे इंडिपेंडेंट होने के बाद ग्राउंड में इसने 60 घंटे फ्लाई किया सर। नाउ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द मैनूवर्स एंड टेक ऑफ लैंडिंग सर्किट्स, एवरीथिंग इज प्रोफिशिएंट इन एवरीथिंग। Right. He is also a flyer. We are training 2 flyers in every event because one is main and another is standby. So both are proficient. He is proficient in take off landing and circuits, and now I am training him also on maneuvers. This is their first model sir, and this is they have made second model, जो कि इससे बहुत ज़्यादा बेटर क्वालिटी में बन रहा है सर, बिकॉज इसमें जो कंट्रोल्स इसने डाले हैं या जो इसके अंदर इसने सारी इसकी मैकेनिज्म को डाल के इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने के बाद जो इम्प्रूवमेंट एक परफेक्ट मॉडल में आती है, जो एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट होता है, उसकी तरफ ही अग्रसर है। Very nice. मैं चाहोगे आज यहाँ पे जो ये सिमुलेटर माइक्रोलाइट का लगाया है, ये बच्चों को बहुत फ़ायदा देने वाला है। इससे एक तो हमारा पेट्रोल का बचत होगा, और ऊपर से हमारे को बच्चों की सुरक्षा जो है, जो एनसीसी का मेन मुद्दा होता है कि उनको ट्रेन किया जाए, अनुशासित किया जाए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो सिमुलेटर ट्रेनिंग से उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ग्रुप कैप्टन नायर जो हैं, हाईली क्वालिफाइड फ्लायर हैं, पायलट हैं, वो बड़े अच्छे मन से, उनका जो स्टाफ है बड़े अच्छे मन से और दिल से बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ उनके काम से। सर कितने दिन की ट्रेनिंग होगी यहाँ पर सिमुलेटर पे? सिमुलेटर पे ऐसा कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है। सिमुलेटर फ्लाइंग नॉर्मल एयरक्राफ्ट में जाने से पहले करते हैं, तो कुछ बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाता है तो उनको उतना ही कम देना पड़ता है। जब तक एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ना आए कि एयरक्राफ्ट में जाके फ्लाई कर पाएँ, उतने ड्यूरेशन तक सिमुलेटर फ्लाइंग कर सकते हैं। लिमिट नहीं है, जितना बच्चा टाइम स्पेंड कर सकता है हम उतना टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। सर किस टाइप की जो ट्रेनिंग्स है एयरफोर्स एनसीसी दे रही है? एयरविंग एनसीसी में नॉर्मल जो एनसीसी यूनिट आर्मी बटालियन और नेवल बटालियन कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमन ट्रेनिंग है उसको छोड़ के एयरफोर्स का स्पेसिफिक फ्लाइंग रिलेटेड ट्रेनिंग भी हम करते हैं। जैसे आपने देखा एरो मॉडलिंग ट्रेनिंग अंदर किया था, उसी तरह हमारे पास 2 माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट भी है जिसका सिमुलेटर देखा है, तो सिमुलेटर में ट्रेनिंग करके उनको फ्लाइंग ट्रेनिंग भी करते हैं। तो बाकी जो जनरल एनसीसी में ट्रेनिंग है वो तो है ही, फायरिंग, स्कीट शूटिंग और इस तरह के बाकी ट्रेनिंग एक्टिविटी जो हैं, कैंप शिविर भी लगाते हैं, साल में एक बार शिविर लगाते हैं 10 दिन का, उस तरह के सारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं। टोटल कितने क्रेडिट्स हैं सर जिनको बेनिफिट होगा? हमारे यूनिट में कॉलेज के 250 छात्र हैं और स्कूल के 1000 छात्र हैं, जो कि हमारा एरिया पंचकुला से लेकर राय तक है। ईस्टर्न साइड ऑफ हरियाणा हम कवर करते हैं। 2 ही एयर स्क्वाड्रन है, तो अम्बाला ग्रुप के नीचे हम हैं, तो हमारे पास अभी 16 स्कूल हैं जो हमारे साथ एफिलिएटेड है, जिसमें 50 से 100 कैडेट के करीब अलग अलग स्ट्रेंथ में एनरोलमेंट किया गया। सभी को बेनिफिट मिलने वाला? सभी को बेनिफिट मिलेगा इस सिमुलेटर से। एयरक्राफ्ट में हमारे लिमिटेशन था कि हम सबको नहीं करा पाते थे, क्योंकि वेदर को नज़र रखते हुए और बच्चों का आना जाना को देते, पर सिमुलेटर के लगने के बाद वो कभी भी आके कर सकते हैं, ऐसे लिमिट नहीं है। जैसे हम दिन के टाइम पे जब गर्मी बढ़ जाता है तो फ्लाइंग नहीं कर पाते थे, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है जब टर्बुलेंस वगैरह ज़्यादा रहता है। तो सिमुलेटर के आने के बाद वो फ़ायदा हमें होगा कि वो कभी भी आके कितने भी बजे आके ट्राई कर सकते हैं। सर नौजवानों किस तरह से प्रेरित करोगे कि वायुसेना में भर्ती होना चाहिए, उनके लिए किस प्रयास रहते हैं सेना की तरफ से? देखिए, एनसीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल से बच्चों को एक वर्दी का एहसास देता है, अनुशासन का एहसास देता है, और फायरिंग, ड्रिल, परेड, पीटी, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं। साथ में बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी, हेल्थ हाइजीन, बच्चों को जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनके बारे में भी हम सिखाते हैं। और A, B और C सर्टिफिकेट, 3 तरह के सर्टिफिकेट देते हैं।
सबसे बड़ा जो बच्चों के लिए फ़ायदा है एनसीसी को ज्वाइन करने का वो ये है कि जैसे ही वो सी सर्टिफिकेट पास करते हैं उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जैसे पुलिस कांस्टेबल की अगर नौकरी किसी बच्चे ने ज्वाइन करनी है तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर उसने कमीशन्ड ऑफिसर बनना है तो उसके लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एक अलग से कमीशन होता है। इसी तरह से बी सर्टिफिकेट के बच्चे जो हैं उनको उनके लिए भी सीटें रिज़र्व होती हैं और साथ ही साथ हायर स्टडीज़ के लिए भी एनसीसी के अलग से मार्क्स होते हैं। इसके अलावा अभी भारत सरकार ने और डीजी एनसीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे सभी कॉलेजों में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हरियाणा में भी ये चीज़ अच्छी तरह हो रही है। डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो मुरथल में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन्होंने इस एनसीसी को इलेक्टिव के तौर पे बच्चों को देने के लिए एग्री कर लिया है और यूजीसी की नोटिफिकेशन उसकी निकल चुकी है। तो इसका अर्थ ये है कि जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ग्रेजुएशन करने के समय हम एनसीसी भी एक सब्जेक्ट रखेंगे। तो उसकी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ट्रेनिंग है वो एनसीसी एयर स्क्वाड्रन कराएगी और जो पेपर वाला काम है वो यूनिवर्सिटी उसकी नंबर देगी और बच्चे को अपनी डिग्री मिलेगी।